Sanjay Jha, many people from the BJP, and everyone is entitled to an opinion, are saying this is a simple move to ensure that there is no law and order trouble that takes place in the name of food and faith on the Kanwad Yatra. This is just a precaution. And we have every right to do it, because the last thing you want, once again in Muzaffarnagar, is a riot. Yeah, I'm glad Shreya, I'm glad you mentioned that. The context of what happened in 2013, where over 60 innocent people were victims of communal violence, and several displaced for months on end who could not even go back to their homes. What is the truth, Shreya? The truth is this, that this was not happening, as you rightly mentioned at the very beginning earlier. Why have these developments suddenly escalated and, took this very alarming image over the course of the last few years, maybe principally over a decade, right? I mean, let's not beat about the bush. We don't have to be politically correct. There is always going to be an attempt by the Saffron Party to try and use their old political business model, which is to remind people about their identity. You see, this is called identity politics, right? It just wants to remind you as to where are you in terms of your religion. It could be even caste. I mean, end of day, this is basically being brazen at this point. I mean, I'm hardly surprised that many people are upset. Some of your panelists clearly aren't, but everyone has a fundamental right to differ. Let me give you one example. Maybe, as a student of political history, I would like to share that with you, Shreya. I remember, reading about what happened in the time when the National Socialists came to power in Germany. One of the ways by which they actually targeted the Jews at that point of time was to tell them to write on their shops and their establishments or their stores, JEW, Jew. It was written down, basically telling them do an economic boycott. In effect, there is some apprehension in the minds of the people who have, passed out this policy that, people who are going to be part of the procession will feel very offended if they buy some food or items from a certain religious community of India. This was not happening before. And I think this is the fundamental question we need to address. Why is it happening now? And I want to leave that for your viewers to know, because the world has seen that this kind of identity politics and polarization can have very unfortunate consequences over a long period of time. Sometimes, things can get out of control because you are actually telling people, kind of reminding them of where they really stand in terms of their religious affiliation in a country. And two short points. Some of the largest beef exporters in India, Shreya, happen to be people who belong to the majority community. Third, what if in a Middle Eastern country or a country populated by another religion, non-Hindu religion, could be Christians, could be Arab countries or a Muslim country or whatever. What if they start telling people tomorrow that you start putting outside your home or outside your shop or the office you run, which nationality or which community you belong to? Is this the kind of culture we need in our politics? I don't think this is a decision taken by the government bureaucrats unilaterally. These are political decisions. And I do hope that the pressure by the JDU and the others makes Mr. Modi and the Chief Minister retrace their steps. It's not just them. This is Mukhtar Abbas Naqvi saying that this will lead to untouchability as far as the minorities are concerned. The RLD is saying we are going to the Chief Minister to tell him to revoke the order. And by the way, a day after the RLD said it, Yogi Adityanath doubled down and expanded the order to entire Uttar Pradesh. अनुभव चाक जी, बड़ी अजीब सी बात है कि एक तो आपके एलाइज खुद बोल रहे हैं मत करिए, फिर भी योगी आदित्यनाथ ने तो किया ही किया, बगल में उत्तराखंड ने भी ऐसा ही ऑर्डर पास कर दिया। मेरा सवाल ये है, कई मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके साउंड बाइट मैंने चलाए नहीं है अनुभव जी, क्योंकि समय नहीं था मेरे पास, लेकिन कई मंत्री कह रहे हैं कि मुसलमान लोग जो हैं कांवड़ यात्रा के रूट पे वो बदमाशी करके जानबूझ के प्यार वेज बोल के नॉन वेजिटेरियन खाना खिला देते हैं हिंदू लोगों को, और इसलिए जो है कांवड़ यात्रा पे इस तरह का रूल लाया जा रहा है। दूसरी तरफ हमको बताया जा रहा है कि नहीं ये तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए। द बीजेपी ऑल्सो हैज टू डिसाइड ना एंड मेक अप इट्स माइंड कि ये ऑर्डर आ क्यों रहा है। साफ साफ बोल दीजिए ऑर्डर क्यों आ रहा है।
देखिए, जहां तक जिस जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं और जिसमें अब ये कहा गया है कि ये वैकल्पिक है, आपके ऊपर थोपा नहीं जाएगा, वो इसलिए आवश्यक था कि कांवड़ यात्रा अरे हिंदुओं का हाँ, एक धार्मिक त्योहार है, हिंदुओं की श्रद्धा से जुड़ा हुआ विषय है। और उस यात्रा के दौरान यदि कोई साजिशन, मैं नहीं कह रहा कि सारे लोग ऐसा कर सकते हैं, लेकिन साजिशन यदि दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति हाँ, हिंदू नाम रख के या कोई और नाम रख के कोई ऐसा प्रयास करता है जिससे हमारी श्रद्धा पे, हमारी आस्था पे ठेस पहुंचती, धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो उसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है वो सभी को पता है। रिएक्शन होना संभव है। मैं दूसरी बात कहता हूँ, जिस समय रमजान का माह चल रहा होता, दो डीजीपी साहब हमारे बैठे हुए हैं, पूर्व डीजीपी जो रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उस समय क्या ये ऑर्डर नहीं दिया जाता है कि कहाँ कहाँ जो हिंदुओं के सुअर बाड़े बने हुए हैं उनमें सुअरों को कैद करा जाए, कहीं उनकी धार्मिक भावनाएं ना आहत हो जाए। उस समय ये नहीं देखा जाता कि किसी का इसमें कोई ऐसे प्रयास नहीं होगा कि उनकी भावनाएं आहत करी जाए, लेकिन हो सकती हैं, तो वो होना भी रोका, संभावित होना भी रोका जा सके, इसलिए ऐसा एक प्रयास करा जा सकता है। उसी दिशा में ये भी कदम उठाया जा सकता है कि ऐसी किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए सबसे बेहतर है कि दुकान के बाहर उस दुकानदार का नाम, उस दुकान में काम करने वाले लोगों के नाम यदि लिख दिए जाएं, तो इस तरीके की घटनाएं जो संभावित हो सकती है उनको भी रोका जा सके। उस दिशा में एक प्रयास है और उस पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम विपक्ष कर रहा है। विपक्ष को ऐसा नहीं करना चाहिए। विपक्ष को यह भी देखना चाहिए कि विपक्ष की सरकारों के दौरान, चाहे वो सार्वजनिक कोई भी, चाहे ट्रेन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे अन्य कोई, मिलिट्री तक में हलाल सर्टिफाइड मीट यही बिकता था। वहां पे झटके का तो बेचने का कोई प्रावधान नहीं था। इस तरीके का दबाव बना के, और अभी जो बीफ एक्सपोर्ट की बात भी हमारे साथी कर रहे थे पैनल में बैठ के, तो बीफ एक्सपोर्ट करने वाला भले ही हिंदू कम्युनिटी का हो, लेकिन बीफ एक्सपोर्ट करने वाले व्यक्ति को हलाल सर्टिफाइड की मुहर उस पर लगानी पड़ती, उसको हलाल करवाना पड़ता है, उनके जो भी उसमें कलमा पढ़ के लोग करते हैं उनसे। तो ये सबको पता है। और इस तरीके का अनुभव जी, एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए मुझे, अगर मुसलमान दाल चावल बनाएगा तो वो दाल चावल बिरयानी तो नहीं बन जाएगी ना। मतलब उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान की ऐसी हिम्मत होगी कि वो एक हिंदू को, वो भी एक कांवड़ यात्री को, वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन खाने के नाम पे उसमें मीट मिला दे? आप कैसी बात कर रहे हैं अनुभव जी? कौन मानेगा ये बात? आप हमारी बात को ध्यान से देखिए, सुनिए। कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें चाहे फल रखे हो, चाहे खाना रखा हो, उस पर थूक लगा के रोटी बनाते भी हम लोगों ने देखा, फलों पे थूक लगाते भी देखा। तो क्या इससे हमारी धार्मिक भावनाएं, हमारी श्रद्धा पे ठेस नहीं पहुंचेगी क्या? इस तरीके की चीजों को रोकने के लिए अगर सीधे सीधे दुकानदार का नाम लिख दिया गया, तो जो उस कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़िए हैं उनके विवेक पर निर्भर करेगा कि वहां हमको जाना है कि नहीं जाना है। पर्दे पे रख कर कोई काम करना आवश्यक ही क्यों है? और ये जो प्रावधान है ये कोई पूरी लाइफ लॉन्ग तो है नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान है, तो इसमें किसी को हर्ज क्या है? क्यों इस पे इस तरीके के लोग ऐतराज जता रहे हैं, पॉलिटिकल रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं? पॉलिटिकल रोटी कौन सेक रहा है? मैं तो ये जानना चाहती हूँ अनुभव जी। आप देख लीजिए घमासान जो चल रहा है आपके चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बीच में, तो पॉलिटिकल रोटी तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ सेक रहे हैं टू शो हु इज द बॉस एंड हु इज इन चार्ज। क्योंकि यूपी, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में इतना डिवाइड हो रखा है। अभी देखने का अपना अपना नजरिया है। हमें तो ये दिखाई दे रहा है कि कैसे शिवपाल यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने से रोका जा सके, उसके लिए अखिलेश प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। कैसे वहां केंद्र की राजनीति करने के बावजूद शिवपाल को प्लेटफॉर्म देने से रोका जा सके, उस तरीके उस तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। चाचा को सम्मान ना दिया जा सके, चाचा को सोफे पे हैंडल पर ही बैठाला जा सके, उसके लिए प्रयासरत दिख रहे हैं। और इसीलिए 4 जून को रिजल्ट घोषित होने के बाद भी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा इसकी घोषणा अखिलेश यादव नहीं कर पाए हैं।